Hello and welcome to the digital platform of AgriView Institute. Here we discuss about agriculture and allied subjects, and today our topic is plant pathology, or our subject is plant pathology. So we will discuss about it. First of all, the term plant pathology, we can call it plant pathology, whether we can call it phytopathology. Okay, so it is a Greek term, as you know the suffix is logy. If the suffix is logy, then or nomi, you can call it generally, you can call it is derived from a Greek language, and if the suffix is culture, then you can say it is derived from Latin language. Okay, so what plant pathology states for, it is phyto plus pathos plus logos. Okay, so phytos means plants, pathos means suffer from, or we can say diseased. Okay, disease or to suffer from, and logos means study. So generally plant pathology includes the study of pathogens, the study of plant diseases and the causal organism and all. It is the general definition. And if we talk about the proper definition of plant pathology, then we can say it is a branch of agricultural, botanical, biological science. Okay? Branch of agriculture, botanical or biological science which deals with cause, etiology, losses and management of plant diseases. Okay, deals with causes, whether it is caused by biotic factor, whether it is caused by abiotic or mesobiotic factor. Etiology, etiology is generally science of studying the initiation of disease, right? How the pathogen or the causal organism initiate the disease is known as etiology. So we will study about cause, etiology, losses caused by plant diseases or the pathogen, and management of the diseases. Okay, so here we will discuss about it. Let's further move. Okay, so there about the history, we will see here major scientific contributions in the field of plant pathology. Okay, so first of all, Antonio Leeuwenhoek. Okay, in the year 1675, okay, Antonio Leeuwenhoek developed first microscope. Okay, in the year 1675, Antonio Leeuwenhoek developed the first microscope, and he is also developed or observed first bacteria or microorganism. ठीक है, he was the first person to observe bacteria and microorganism in the year 1683. Okay, and he named the microorganism as animalcule. Okay, named as animalcule. Later in 1729, P.A. Michaeli. P.A. Michaeli was first observed fungal spore. Okay, 1729 में P.A. Michaeli जो है, इन्होंने फर्स्ट टाइम फंगल स्पोर को ऑब्जर्व किया था, और इन्होंने बताया था कि जो फंगस है वो स्पोर से डेवलप होता है. ठीक है, फंगस किससे डेवलप होता है? स्पोर से डेवलप होता है, ये इन्होंने बताया था. इनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी. ओके, फादर ऑफ माइकोलॉजी बोला जाता है P.A. माइकेली को. लेट्स अगर अपन मूव करें फर्दर, तो हम देखेंगे इन 1845. ठीक है, 1845 में क्या होता है? आयरिश फेमाइन. इट इज वेल नोन टू ऑल ऑफ अस. ठीक है, हम सभी जानते हैं कि आयरिश फेमाइन जो है वो ईयर 1845 में आया था ड्यू टू लेट नाइट ऑफ पोटैटो इन आयरलैंड. ठीक है, सो द स्टेपल फूड ऑफ आयरलैंड वाज पोटैटो. राइट, इट वाज द स्टेपल फूड ऑफ आयरलैंड, एंड उसमें जो डिजीज हुई थी लेट नाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, तो उस वजह से वहाँ की क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी कम्प्लीटली. और बिकॉज क्योंकि वहाँ की जो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो पोटैटो फीड करते थे जनरली, तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे लगभग 1 मिलियन पीपल जो है वो स्टारवेशन की वजह से डेड हो गए थे. ठीक है, कितने लोग? 1 मिलियन पीपल. ठीक है, 1 मिलियन पीपल जो है वो डेड हो गए थे ड्यू टू स्टारवेशन. और डिजीज कौन सी थी? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. सॉरी, ये गलत लिखा है, कोई नहीं. और फर्दर जो है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे डिजीज की. तो 1861 में, ठीक है, 1861 में एंटोन डिबेरी ने क्या किया था? इन्होंने जो है जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. ठीक है, क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. we can write late blight of potato. Okay, here
तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या जाएगा, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो इन्होंने जो है, एंटोन डिबेरे ने जो है इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, और इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसको मैं एडजस्ट करूँ थोड़ा, ठीक है। ईयर 1883 में, ठीक है, 1883 में क्या हुआ था, पीएमए मिलार्डेट ने बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की थी। ठीक है, पीएमए मिलार्डेट ने क्या किया था, बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की थी 1883 में। बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज इन्होंने जनरली की थी जो ग्रेप वाइन में डिजीज लगती है, डाउनी मिल्ड्यू, है ना, ग्रेप वाइन में डिजीज लगी थी डाउनी मिल्ड्यू, और इन्होंने खोज की थी फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में जो रीजन का नाम था वो था बोर्डेक्स। ठीक है, फ्रांस के बोर्डेक्स रीजन में इन्होंने जो है पीएमए मिलार्डेट ने बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की थी, किसके ट्रीटमेंट के लिए, जो ग्रेप वाइन में जो डिजीज लगती है डाउनी मिल्ड्यू उसके लिए। ठीक है, उसके लिए इसके ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने जो मिक्सचर बनाया था उसका नाम दिया था बोर्डेक्स मिक्सचर। इसका जनरली इसका कंपोजिशन अगर अपन देखें, है ना, इसका कंपोजिशन देखें तो वो हो जाएगा, बोर्डेक्स मिक्सचर का कंपोजिशन जो है वो है कॉपर सल्फेट हो जाएगा इसमें, है ना, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है, और प्लस वाटर, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, वाटर। इनका रेशियो जो होगा वो होगा 1:100। ठीक है, ये रेशियो चाहिए, क्या होगा, ये है इसका कॉम्पोजिशन है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम है और वाटर है, इन द रेशियो ऑफ 1:100। ठीक है, वी कैन टेक 1 kg ऑफ copper sulfate, 1 kg of hydrated lime and 100 liter of water to make Bordeaux mixture. Next we will discuss 1918. In 1918 E.J. Butler, okay, E.J. Butler wrote a book. ठीक है, in 1918 E.J. Butler wrote a book named Fungi and Diseases in Plant. ठीक है, it is very important. Okay, I repeat, it is very important from exam point of view. It is many times asked because it is a contradiction with other book which we will discuss further. Okay, we will discuss about it. So fungi and diseases in plant, fungi and diseases in plant wrote by E.J. Butler. Okay, and he is known as father of modern plant pathology in India. Okay, it is known as फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, और इन्होंने ये वाली बुक लिखी थी। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टाइम आई एम सेइंग। एंड देन इन 1943 ग्रेट बंगाल फेमाइन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इट इज आल्सो वेल नोन टू ऑल। सो ग्रेट बंगाल फेमाइन वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, राइट, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। ठीक है, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइस, हेलमिंथो सॉरी ओराइस। ठीक है, तो बंगाल में जो है ये डिजीज आई थी राइस क्रॉप में। ठीक है, राइस की क्रॉप में डिजीज आई थी, कौन सी, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज आई थी। ठीक है, तो इस वजह से जो है वहाँ की क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी, और अराउंड 1.5 मिलियन पीपल जो है स्टार्वेशन की वजह से मर गए थे। ठीक है, डेथ हो गई थी उनकी, आई मीन ये जो है वहाँ पे हुआ था। फिर उसके बाद बात करेंगे 1948 में। ठीक है, 1948 में बी मुनकर, ठीक है, बी मुनकर ने जो है इन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, इन्होंने जो है एस्टैब्लिश की थी किसको,
इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी एस्टैब्लिशमेंट जो है इन्होंने किया था, ठीक है, बीबी मुंडकर ने, और इन्होंने बुक लिखी थी फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस, ठीक है, फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली जो है अपन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि बीबी मुंडकर ने कौन सी लिखी थी एंड ईजे बटलर ने कौन सी लिखी थी, और दोनों के लगभग सेम है, बुक्स के नेम भी और साइंटिस्ट के नेम भी लगभग ऐसे ही है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है ये। तो याद रखिए कि बीबी मुंडकर ने लिखी थी फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। अगर आप बना सको तो अपनी कोई ट्रिक बना लेना, मेरे तो कोई ट्रिक नहीं है, बाकी आप ट्रिक बना लेना इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये लिखी थी और ईजे बटलर ने लिखी थी फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन देखेंगे 1963, ठीक है, 1963 में जे.ई. वोंडा प्लांक, ठीक है, जे.ई. वोंडा प्लांक ने जो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, ठीक है, इन द ईयर 1963, ठीक है, 1963 में जे.ई. वोंडा प्लांक ने बताया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? वर्टिकल रेजिस्टेंस जो है वो एक पर्टिकुलर पैथोजन के स्ट्रेन के लिए डेवलप की जाती है प्लांट में, ठीक है। रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट टू विथस्टैंड डिजीज, ओके, ठीक है, मतलब कि वो किसी भी टाइप डिजीज से सफर नहीं करेगा अगर वो रेजिस्टेंट है तो वर्टिकल रेजिस्टेंस जो है वो एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए है या पैथोजन के एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए, ठीक है, तो वो अगर अदर पैथोजन उस प्लांट को अफेक्ट करेंगे तो वो रेजिस्टेंस नहीं शो करेगा, ठीक है, वो ससेप्टेबल होगा उनके लिए, बट वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो जो है एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत सारे पैथोजन के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, बहुत सारे पैथोजन के प्रति, नॉट मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेन नहीं बल्कि पैथोजन्स के लिए जो रेजिस्टेंस शो करता है प्लांट इन जनरल, वो है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम एग्जांपल से समझें तो हम कह सकते हैं जैसे कोरोना की जो वैक्सीन लगी थी, ठीक है, कोरोना की जो वैक्सीन हमें लगी थी तो वो हमें किससे बचा रही थी? कोरोना से बचा रही थी, राइट, बट अदर डिजीजेस अगर हुई तो वो तो होंगी ना ऑब्वियसली, वो सिर्फ कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है, तो वो हो गई वर्टिकल रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल में जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो हमें ऑल ओवर डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये थोड़ी वर्टिकल होती है, ये जो है मल्टीपल जीन से गवर्न होती है, ये वाली, ठीक है, मल्टीपल जीन से गवर्न होती है ये वाली, ये जो है ओलिगो या फिर फ्यू जीन्स, ठीक है, वन जीन भी कह सकते हैं या फिर फ्यू जीन से गवर्न होती है ये वाली वर्टिकल रेजिस्टेंस है जो, ठीक है, इसमें जो है रेजिस्टेंस के जो ससेप्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए रेजिस्टेंट है, तो अगर पैथोजन जो है वो म्यूटेट करता है, ठीक है, उसमें म्यूटेशन होता है तो ये इसका कोई वो नहीं रह जाएगा इफेक्ट, ठीक है, फिर प्लांट जो है ससेप्टेबल हो जाएगा उसके लिए। ये अपन बात करें रेजिस्टेंस की। इसके बाद अपन देखेंगे इन ईयर 1898 में बीजेरिंग ने जो है वायरस टर्म दी थी, ठीक है, बीजेरिंग ने 1898 में टर्म दी थी वायरस, ठीक है, वायरस जो है वो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है पॉइजन, ठीक है, वायरस का मतलब क्या होता है? पॉइजन, ठीक है, और इसमें जो है जो क्रोमोसोम जो हेरिडिटी पार्ट होता है, ठीक है, डीएनए आरएनए जो होता है दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेदर इट कैन बी डीएनए वेदर इट कैन बी आरएनए, ठीक है, इट कैन बी आरएनए, ठीक है, ये होता है। फिर इसके बाद जो है 1967 में डोई एंड इशी ने टर्म दी थी फाइटोप्लाज्म, ठीक है, 1967 में डोई एंड इशी ने टर्म दी थी फाइटोप्लाज्मा, ठीक है, which is again a microorganism and previously it was known as mycoplasma like organism, ठीक है, फाइटोप्लाज्मा टर्म जो है बाद में दी गई थी, पहले इसको बोला जाता था MLO, ठीक है, क्या बोला जाता था? MLO, ठीक है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्म लाइक ऑर्गेनिज्म, right? Then later in 1972 डेविस एट ऑल ने टर्म दी थी स्पाइरोप्लाज्म,
ठीक है। किसने दी थी? डेविस एट ऑल ने 1972 में, ठीक है, टर्म दी थी स्पायरोप्लाज्मा विच इज अगेन ए पैथोजन, ठीक है, सिमिलर टू बैक्टीरिया, ठीक है, सिमिलर टू बैक्टीरिया जो है ये स्पाइरल शेप का होता है, स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। तो ये टर्म दी थी डेविस एट ऑल ने, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली the introductory portion and some kind of history of plant pathology. Again, it is the starting, so I may have made some mistakes. So if you notice any kind of mistake, please let me know in the comment box. I will definitely try to improve that, and please subscribe to our channel. Thank you.